Good afternoon, everyone. How are you today? Everything is fine, and you are studying, you are practicing. Again, this word practicing will always come, right? Because that is something very important. So, because we are talking about how to make sentences, how to speak in certain situations, how to use different situations in certain situations. So that's why this word practice will always come, right? So again, we are here for this level 2 class, and in today's class, we are going to do some worksheets, and with that, we will also do new topic that is again a simple topic. We call it past continuous. Okay, in the last class, before to that last class, we did present continuous. So this is also a similar kind of situation, but change is that it is related to past. So we are going to understand what are those certain situations where you will use all these sentences related to past continuous. So this is something we are going to do in today's class. All right. Before that, it is also important that you have you have completed certain topics. So again, the point is that you've been using those topics regularly, continuously on daily basis. So that the point is that those structures are fresh in your head. So structures should be fresh in your head all the time. And how will you do that? You will simply do that by making sentences, by speaking, by doing some sort of practice, maybe alone, maybe with your friends, or maybe someone from your family. So this is something you have to keep on doing just to make sure that you are asking questions, you are if someone asks you questions, then you are comfortably answering those questions. And for that, we have different exercises, different situations. So जितनी भी ऐसी exercises हैं, different situations हैं, हम जो exercises करते हैं, situations करते हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए करते हैं कि कब, कहाँ, कैसी situation में क्या sentence use हो सकता है, क्या question पूछा जा सकता है. बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक कि स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या पूछना है, राइट? तो कोई भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही सिचुएशन होगी, इसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ओके, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीकर. स्पीकर इट मीन्स अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप स्पीकर हैं, अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप लिसनर हैं. आप लिसनर हैं तो सुन के भी रिप्लाई करना है, स्पीकर हैं तो क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, या कुछ बात करेंगे. सो ये जो बातें, ये क्वेश्चन, ये जो सिचुएशंस हैं, ये अलग अलग है, राइट? अलग अलग इन द सेंस कि कभी भी कुछ भी बात हो सकती है. सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ दीज सिचुएशंस, you have to make sure that you are super comfortable with all these situations, and you are understanding all these different structures. And when you understand, then definitely समझ में आ रहा है, आ गया है, तो फिर आपको उसको यूज करना है. ओके, सो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसलिए हमको ये समझना है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं, सिचुएशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आप लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं, इसको अगर हम बोल के नहीं देखेंगे, अगर हम अपनी हैबिट में नहीं लाएंगे सेंटेंसेस यूज करना, बोलना, राइट, सो वो स्पोकन वाला पार्ट, वो इतना हम उसमें कंफर्टेबल नहीं हो. अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइजेस भी इसलिए होती हैं ताकि वो हम डिफरेंट सेंटेंसेस समझ में आ जाए. ओके, sentence can be asked like this, can be made like this. If a sentence is like this, then I have to give answer like this, or I have to ask a question like this. ये सारी चीजें समझने के लिए जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, ये सब चीजों में, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हम कंफर्टेबल नहीं होंगे. ओके, सो एज यू नो कि ये हम लेवल 2 कर रहे हैं. सो लेवल 2 में हमने सर्टन टॉपिक्स लिए हैं, राइट? लेवल 1 में आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ सर्टन टॉपिक्स हैं, राइट? सो ये लेवल के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. सो अगर हम लेवल 1 देखें, लेवल 1 में कुछ टॉपिक्स हैं, लेवल 2 देखें, लेवल 2 में कुछ टॉपिक्स हैं, तो लेवल 1 आपने कंप्लीट किया. सो उन पार्ट्स में आपको सुपर कंफर्टेबल होना है. सो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ये नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए. यहाँ पे पॉइंट ये है, कंप्लीट करने के बाद हम उसमें कंफर्टेबल हो गए, राइट? यू नो हाउ टू यूज इट, यू नो हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, एंड देन
वी हैव लेवल 2 जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें काफी सारे पार्ट्स हमने कर लिए, अभी और पार्ट्स भी करेंगे, राइट। सो ये जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं, आपको इसमें कंफर्टेबल होना है। वो कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने क्लास करी, सो नेक्स्ट डे से हम सुनने के बाद एक्सरसाइज समझने के बाद हम उसमें बिल्कुल एकदम से कंफर्टेबल हो जाएं। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। अब ये जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि आप ये थोड़े को कितना थोड़ा कर सकते हैं, राइट, कितना ज्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर ज्यादा टाइम लगना है, एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगना है। समझ में आ जाएगा किस तरह के सेंटेंसेस हमको यूज करना है, क्या सिचुएशंस में हम क्या यूज करते हैं। तो बिल्कुल हमको इसको स्पोकन पार्ट को ऐसे लेना है जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी या हम कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं, कितने कंफर्टेबली हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। वो कंफर्टेबल, उतना कंफर्टेबल होने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, राइट। वो एकदम से नहीं हो, और एकदम से पॉसिबल भी नहीं, राइट। सो इस पॉइंट को भी समझना है कि हम ये नहीं सोचें कि एकदम से हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना है, एंड पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना, राइट। सो ये दोनों चीजें एक साथ चलें, पेशेंस एंड देन प्रैक्टिस। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पेशेंस भी है, तो आप धीरे धीरे रिजल्ट देखेंगे इसका, कि दैट यू आर गेटिंग कंफर्टेबल, ओके। एंड इसके लिए बस पॉइंट यही है कि आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, ओके। गुड। सो दिस इज समथिंग, ये जो प्रैक्टिस वाली बात होती है, एंड ये रोज हर क्लास में होती है, क्योंकि ये हमको अच्छे से समझना है, ओके, कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और कोशिश ये करनी है कि कितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, राइट, क्योंकि रिजल्ट अगर आप जल्दी देखना चाह रहे हैं तो फिर प्रैक्टिस भी वैसे ही होना चाहिए। सो आज हमारी 32nd क्लास है, राइट। तो हमने 31 क्लासेस कर ली है, एंड 31 क्लासेस में आप अपनी जर्नी को देखिए, एनालाइज करिए, कितने कंफर्टेबल हो गए, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, किन सिचुएशंस में आपको कंफ्यूजन आ रहा है, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जब आप सेंटेंसेस बना रहे हैं। ये सब क्यों, कब, कैसे समझ में आएगा, जब आप ट्राई करके देखें। ट्राई नहीं करके देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने टॉपिक्स तो कर लिए हैं, लेकिन जब एक्चुअली हमको उनको यूज करना होगा, वो वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी। एंड वो डिफिकल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, गेट इनटू द हैबिट, ओके। डू इट अलोन, do it with your friends, find someone so that you can practice with that person, okay? All right. So सबसे पहले अभी हम जो जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ पिक्चर्स करे थे, आई होप कि आपने उन पिक्चर्स को लेके सेंटेंसेस ट्राई करे होंगे, सोचे होंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, ओके। सो उन पिक्चर्स को लेके आपने सेंटेंसेस ट्राई करे, ये हमारी प्रैक्टिस हो गई कि हम सेंटेंसेस सोच रहे हैं, सेंटेंसेस बोल रहे हैं, ओके। जब भी आप कोई सिचुएशन के बारे में सेंटेंसेस बोल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए क्या हम दूसरे सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं, क्या हम नेगेटिव यूज कर सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थिंक लाइक दैट। जितना ज्यादा आप सोचेंगे एंड सोच के यूज करेंगे कि क्या, व्हाट आर द पॉसिबल सेंटेंसेस, राइट, क्या, व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस हियर, राइट। व्हेन यू थिंक लाइक दैट, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ सेंटेंसेस, यू आर यूजिंग, एंड जब यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स आप उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एंड यूज करने की आदत जा। So this is all about getting into the habit. Okay? And जो हमने लास्ट क्लास में पिक्चर्स किए थे, राइट, उसके अलावा भी एक थोड़ा सा एक तो और पिक्चर हम देखेंगे, राइट। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि ये जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस, ये हमको क्या हिंट दे रहा है, किस तरह के यहाँ पे सेंटेंसेस आ रहे हैं, और स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस होते हैं, राइट, ये हम जल्दी से देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो जैसे हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम पे, कोई खास टाइम पे कोई चीज हो रही थी, ओके, एक्शन वाज गोइंग ऑन। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या था, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चल रहा है, राइट। सो वहां पे वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ऑपोजिट, पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे, इवनिंग में, कल आफ्टरनून में कुछ हो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, पर्टिकुलर टाइम,
राइट। सो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जाम्पल कल आफ्टरनून में मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, तो आपने क्या डिस्कस किया कि आफ्टरनून में आप कुछ कर रहे थे, राइट। कल मैं अपना होमवर्क कर रहा था, राइट। सो वहां पे हम जैसी सिचुएशन वैसे हमारा सेंटेंस आ जाएगा, राइट। बट थोड़ा सा ये क्लियर रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस इट मींस इट इज अबाउट कंटिन्यूटी, एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट रिलेटेड टू द पास्ट सिचुएशन। यहाँ पे भी एक्शन प्रोग्रेस में है बट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ओके। सो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ओके। एंड इजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, राइट। सो पहले तो हम सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस यू फॉलो दीज स्ट्रक्चर्स। अगेन यहाँ पे आपने जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में इज आर एम का ध्यान रखा था, यहाँ पे आप वॉज एंड वर का ध्यान रखें, ओके। सो वॉज यू विल यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर यू विल यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, सिंपल। एंड अगेन बिकॉज कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं यू विल ऐड आईएनजी इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी ऐड करना, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें ख्याल में रखना है कि वॉज एंड वर है हमारे पास दो ऑप्शंस। So when you are thinking about positive sentences, singular subject, plural subject के according, you will use was and were, and you will add ing in verb first form. Simple. And what is the message coming? Message is coming that someone was doing something or someone was happening at that particular time. Okay. For example, he was playing in the garden. Okay, mummy was kneading the floor. So you are just giving the hint about past situation that something was happening at that time. ओके, सो यहाँ पे हम टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, टाइम मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी मैसेज जा रहा है कि दैट समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट। आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज, यहाँ पे हम टाइम ऐड कर सकते हैं, आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज इन द इवनिंग, आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज इन द मॉर्निंग। सो यू कैन ऐड टाइम पार्ट ऑल्सो। एंड जब ये आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप पास्ट में कल, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आप कुछ कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल you can say last month at this time, last month at this time I was sleeping, last month इस वक्त I was sleeping, मैं सो रहा था, राइट। सो बहुत दूर की बात हो गई लास्ट मंथ, राइट। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस हैं, कंटिन्यूटी का बस ध्यान रखना है, ओके। Plural subject, we will use were. Okay. So they were knocking at the door. You were shouting at children. So the sense of continuity, continuity का sense आ रहा है, but the sense is about past situation. तो past में कुछ हो रहा था, right? So जैसे present situation है, present में हम देख रहे हैं कुछ हो रहा है, continuously हो रहा है, present situation में past में continuously हो रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह से उनको हमको यूज करना है। तो ये तो अभी हमारे सिंपल सेंटेंसेस चल रहे हैं अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस सिचुएशन, ओके। सो दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओके, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, वेरी सिंपल, जैसे हमने प्रेजेंट सिचुएशन में इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट कर लिया था, ऐसे ही यहाँ पे हम वॉज नॉट एंड वर नॉट कर लेंगे। सो जहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन का टर्म यूज हो रहा है तो वहाँ पे सिंपली हमको नॉट लगाना है एंड एज इट इज स्ट्रक्चर फॉलो करना है, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर wasn't, subject plural weren't. The maid wasn't mopping the floor. Mopping, it means cleaning the floor with the help of cloth. Okay, I wasn't doing anything. यहाँ पे हम टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, I wasn't doing anything yesterday. I wasn't doing anything yesterday. I was not doing anything yesterday. Okay, was not, wasn't, short forms. As you know, spoken में short forms use करते हैं हम. Rohit wasn't plucking flowers. Okay, Rohit wasn't plucking flowers. Pluck, it means तोड़ना. Flowers को तोड़ने की बात हो रही है. Okay? So Rohit wasn't plucking flowers. All these sentences are सुपर इजी, राइट। जैसे हमको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर्स भी इजी हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि what is that situation where you need to use it. So you will use when you talk about past, okay, and you will say that at that particular time something was happening.
समथिंग वाज इन प्रोग्रेस। सो दोनों में, प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन में, दोनों में डिफरेंस यही है सिंपल सा, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है एक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। पास्ट में भी हो रहा है बट लेकिन पास्ट है तो इसलिए वो हो रहा था हो जाएगा, राइट, सिंपल। All right. When you make negative sentences with plural subject, then simply you will use weren't. Okay, were not, weren't. So that's how you will make negative sentences when you use past continuous sentences. So far अभी तक हम simple sentences discuss कर रहे हैं past continuous में, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कुछ past में हो रहा था, action was going on. Okay, action was going on. All right. अब ये सेंटेंसेस देखिए, थोड़े से ये सेंटेंसेस डिफरेंस हैं, एंड पास्ट कंटिन्यूअस मोस्टली मोस्टली इसी तरह से यूज होते हैं। majority ऑफ टाइम्स पास्ट कंटिन्यूअस इस तरह से यूज होते हैं जहां में हम ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था, उसी वक्त कोई दूसरा एक्शन भी हुआ। ओके, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पास्ट में यस्टरडे, लास्ट मंथ, ओके, पास्ट से रिलेटेड कोई भी हो सकता है टाइम। पास्ट में कुछ एक्शन हो रहा था एंड उसी वक्त कुछ और एक्शन भी हुआ, राइट। सो दो यहाँ पे सिचुएशंस हैं। ओके, अब दो सिचुएशंस हैं इसलिए यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन यू केम इन, राइट। ही वॉज डूइंग समथिंग, वो कुछ एक्शन कर रहे थे। क्या इंटरप्शन हुआ, क्या एक और चीज हुई, व्हेन यू केम। सो जब आप आए या जब आप आए थे, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहा था। सो यू आर टेकिंग आउट दिस सेंस। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमको दो स्ट्रक्चर यूज करना है, हम इस तरह से यूज करेंगे। एक हम कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, एक हम इनडेफिनेट पार्ट में यूज करेंगे जहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कम का केम पार्ट यूज किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मम्मी वॉज नीडिंग द फ्लावर व्हेन यू कॉल्ड हर। ओके, मम्मी वॉज डूइंग सम एक्शन, कुछ इंटरप्शन हुआ। क्या इंटरप्शन हुआ, एक और चीज हुई। क्या हुई वो, व्हेन यू कॉल्ड हर, तो जब आपने उनको कॉल किया, शी वॉज डूइंग समथिंग, कुछ कर रही, क्या कर रही, शी वॉज नीडिंग द फ्लोर, वो आटे को गूंद रही थी, राइट। सो दिस इज द सेंस का। एंड मोस्टली कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हम इस तरह से ज्यादा यूज करते हैं जहां पे हम दो ऐसे ही सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप ये कर रहे थे ऐसा हो गया, राइट। So for such situations, we use sentences, we make sentences like these. Okay, क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ओके, अभी क्लियर हो जाएगा, हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो। ओके, इट विल बी ओके। आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस का सेंस देखिए, क्या हो रहा है यहाँ पे सेंटेंस, जब वाइल यूज हो रहा है, आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हैं। जब दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे थे, आप कुछ और कर रहे थे और आपका फ्रेंड कुछ और कर रहा था, वहां पे हम वाइल को यूज करके उसको भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में रखते हैं। ओके, कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं विंडोज क्लीन कर रहा था, जबकि वाइल से हम ऐसा सेंस निकाल सकते हैं, जबकि वाइल ही वॉज वॉचिंग, जबकि वो टीवी देख रहा था। सो दोनों चीजें एक साथ हो रही। यहाँ पे इंटरप्शन नहीं हो रहा, राइट, यहाँ पे एकदम से कोई दूसरी चीज नहीं हुई, यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो रही थी पास्ट। क्या हो रही थी, आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज एंड वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, सो ये सेंटेंस हम सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई वॉज क्लीनिंग द विंडोज एंड ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, वाइल की प्लेस पे हम इस तरह से भी सिंपल सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि मैं विंडोज क्लीन कर रहा था और वो टीवी देख रहा था, राइट। बट इन सच सिचुएशंस वी यूज वाइल। सो वाइल को भी हमको समझना है कि वाइल किस तरह से यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सिमिलर सा एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। दे वर नॉकिंग एट द डोर while you were completing homework. So again, दो चीजें एक साथ हो रही थी। क्या हो रही थी, फर्स्ट थिंग वाज दे वर नॉकिंग एट द डोर, वो डोर पे नॉक कर रहे थे, जबकि while you were completing homework, जबकि आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, वहां पे नॉकिंग हो रही, दोनों चीजें एक साथ हो रही।
सो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि जब हमको इस तरह से सिचुएशन में यूज करना है सेंटेंस कि दोनों चीजें एक साथ हो रही थी, सो हम वाइल को यूज करेंगे, एंड वाइल वाला जो पार्ट है उसके बाद वाला जो पार्ट, उसको भी हम कंटिन्यूअस में ले लेंगे। ओके। फर्स्ट टू एग्जांपल्स में आप क्या देख रहे हैं कि जब व्हेन यूज हो रहा है तो हम उसके बाद वाला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में रख रहे हैं, जहाँ पे वो आपका सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा हिंट है कि मोस्टली ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है एंड वहाँ पे कुछ ऐसा है कि जहाँ पे कुछ इंटरप्ट हुआ और कोई एक और चीज हुई, उस सिचुएशन में हम व्हेन यूज कर रहे हैं, व्हाइल यूज कर रहे हैं। जब आप व्हेन यूज कर रहे हैं उसके बाद आना है पास्ट इंडेफिनिट पार्ट, जब आप व्हाइल यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आना है कंटिन्यूअस पार्ट। तो एक ये छोटा सा हिंट है तो ये समझने के लिए कि व्हाइल के बाद हमको कंटिन्यूअस पार्ट यूज करना है एंड व्हेन के बाद हमको पास्ट इंडेफिनिट पार्ट यूज करना है। ओके। यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेंस समझें इन सेंटेंसेस का कि क्या सेंस निकल रहा है। ओके। एंड व्हाट इज द सेंस कमिंग? दो सेंसेस निकल रहे हैं। एक तो सेंस ये है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे, उसके लिए हम व्हाइल यूज कर रहे हैं। एक एक्शन ये निकल रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा था उसी वक्त कुछ और भी हुआ, राइट। सो जो कुछ और भी हुआ, जब कुछ हो रहा था वहां पे हम व्हेन यूज कर रहे हैं एंड वहां पे सेकंड पॉइंट, सेकंड वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके। Now, last example, you were shouting at children when they saw you, right? So you were doing something when they saw you. Okay, so यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है कि आप क्या कुछ कर रहे थे, आप बच्चों पे चिल्ला रहे थे जब उन्होंने आपको देखा। When they saw you, you were shouting at the children. अब अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाता, you were shouting at children while they were seeing, ओके, वाइल दे वर सीइंग यू, तो यहाँ पे सेंस ये निकल रहा है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सेंटेंस कैसे यूज करना है, राइट। क्योंकि ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है, राइट, वो क्या सोच के सेंटेंस को यूज कर रहा है। वो क्या ये बताना चाह रहा है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे, या वो ये बताना चाह रहा है कि कुछ हो रहा था एंड फिर कुछ इंटरप्शन आया, एक और चीज हुई वहां पे, राइट। सो ये डिपेंड करेगा स्पीकर पे, एंड इसके लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। क्या स्ट्रक्चर है? व्हेन का यूज हो रहा है, उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। व्हाइल यूज हो रहा है, उसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म यूज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके। जब और एग्जांपल्स देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जितने ज्यादा आप खुद से एग्जाम्पल सोचेंगे उतना ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा तो फिर देखिए कि क्या कंफ्यूजन आ रहा है। ओके। एंड जो कंफ्यूजन आ रहा है फिर आप उसको आस्क, ओके, विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन आस्क। ओके, you can also ask your friends or someone from your family, right? They will also tell you, they will also help you. But again, the point is that you are making sentences from your side. Okay. So जितने भी ऐसी situations हैं सब में हमको खुद अपने sentences, क्योंकि अब पता नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बोलना है, आपको क्या यूज करना है, तो ये तो सिर्फ आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस यूज करना है हमको, सेंटेंस को हमको फॉर्म करना है। सो दैट्स वाई ये जब आप यूज करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके। चलिए, अब ये एक हमने पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक और पॉइंट यूज होता है जहाँ पे व्हेन एंड व्हाइल यूज होते हैं वो हमने समझ लिया। तो पास्ट कंटिन्यूअस एक सिंपल सी सिचुएशन है जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि पास्ट में कुछ एक फिक्स टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हो रहा था, यू आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस। एक और सिचुएशन हो सकती है कि दो चीजें एक साथ हो रही थी, हमने वहां पे व्हाइल यूज कर लिया। एक और सिचुएशन हो सकती है कि एक चीज हो रही थी उसी बीच में कुछ और भी हो गया, उसमें कुछ इंटरप्शन आया, राइट, तो वहां पे हम व्हेन यूज कर लेंगे, राइट। कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, राइट, वो गार्डन में खेल रहा था। व्हेन यू केम, तो जब आप आए वो गार्डन में खेल रहा था, राइट। All right. Now, see how to make interrogative sentences. And again, very simple interrogative sentences use करने के लिए according to the subject, we will simply start the question with was or were. If subject singular, we'll start the question with was. If subject is plural, start the question with were. Was she studying at this time in the afternoon? Okay, यहाँ पे हमने simple से examples use करें. Was I annoying you? So
जैसे ही आपने यूज करा वॉज आई अनोइंग यू, सो सेंस, सिंपल सा सेंस निकलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही, राइट? वॉज रवि राइडिंग अ बाइक? यस, ही वॉज राइडिंग अ बाइक. Okay, he was riding a bike in the afternoon, in the evening, yesterday. So you can use time expression. Okay, and because ये सारे questions हैं तो ये इनको हम समझते हैं ये सारे yes no questions हैं, तो आप इनके answers भी देख लेंगे. You will give positive answer, you will give negative answer, and that way you will practice, okay, how to answer some of these questions. Were you playing in the garden? We are starting question with were. Why? Because we are using plural subject. Okay. Were you playing in the garden? Yes, I was playing in the garden. No, I was not playing in the garden. I was completing my homework when you saw me. I was completing my homework while you were playing in the garden. So it depends. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस ऐड करें. ओके, सो सेंटेंसेस कुछ ऐड करके भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आए, समझ में आए कि किस तरह से हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. वर दे पीलिंग अनियंस फॉर द डिनर? सो जैसे ही सेंटेंस यूज हो रहा है वर दे पीलिंग अनियंस फॉर द डिनर, इट मीन्स कुछ फिक्स टाइम की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, कि वो कुछ ऐसा कर रहे थे डिनर के लिए, राइट. यस, दे वर पीलिंग. पीलिंग मीन्स पील मतलब छीलना, ओके, उसका स्किन निकालना, उसकी कवरिंग को निकालना. So, were they peeling onions for the dinner? Yes, last night they were peeling the onions for the dinner. They were peeling onions for the dinner. No, they were not peeling onions for the dinner. They were doing something else. So, जैसे भी हमको सेंटेंस यूज करना है हम सेंटेंस यूज करेंगे. यहाँ पे बस सिचुएशन एंड स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है एंड ये ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू नीड टू यूज इट. ऑलराइट. सो जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहाँ पे हम देख रहे थे कि एक्शन इज गोइंग ऑन, सिंपल, राइट. यहाँ पे एक्शन पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में कुछ एक्शन हो रहा था एंड यहाँ पे कुछ दूसरे सेंटेंसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे हम व्हेन एंड व्हाइल यूज कर रहे हैं. ओके, सो उन सेंटेंसेस पे भी ध्यान देंगे. चलिए नेक्स्ट वन. We'll also make questions with WH words. Okay, WH words से हम question बनाएंगे and when you use WH words, right, it means you are asking again question and that is related to something that was happening in past continuously. Okay, why was he getting angry yesterday? Okay, so why was he getting angry yesterday? वो कल गुस्सा क्यों हो रहे थे? अब देखिए ये यहाँ पे सेंटेंसेस कंप्लीटली जब आप वो सेंटेंसेस समझ जाते हैं उनके स्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो फिर ये आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कहाँ पे कैसे आपको उसको यूज करना है. ओके, सो समझने के बाद आप ये देखेंगे कि आप सेम सेंस दूसरे सेंटेंस को यूज करके भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई वॉज ही गेटिंग एंग्री यस्टरडे? ओके, वो कल क्यों गुस्सा हो रहा था? हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले, वाई डिड ही गेट एंग्री यस्टरडे? कल वो गुस्सा क्यों हुआ? अब ये पूछने वाले के ऊपर है, राइट, कि वो किस तरह से उसको पूछ रहा है. वो कंटिन्यूअस यूज कर रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज तो यही आ रहा है कि वो कल गुस्सा क्यों थे, राइट. एक जगह हम बोल रहे हैं क्यों गुस्सा हो रहे थे, एक जगह हम बोल रहे हैं क्यों गुस्सा हुए थे, राइट. सो जैसी सिचुएशन जैसे हमारा थॉट आ रहा है, राइट, एकदम से थॉट आता है कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये बोलना है. सो जैसा थॉट वैसा हमारा सेंटेंस हो जाना चाहिए. ओके, एंड उसके लिए if you know structures very well, right, if you understand them very well, then वहां पे आपके लिए easy, right. एंड हमेशा इसी तरह से सोचें कि हम क्या और सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को और किस वे में हम यूज कर सकते हैं. ये आपकी रियल प्रैक्टिस है, राइट. जब आप थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ और क्या, राइट, और क्या. सिंपली हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल्स देखा और बस इन्हीं एग्जाम्पल्स को हमने समझ लिया कि हाँ इनको ऐसे ही यूज करना है. आप खुद से भी ट्राई करिए, खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या क्या हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं सिचुएशन, राइट. That is real practice. There you will understand in a better way. Okay? What were you studying? What were you studying in the evening yesterday? Hmm. What were you studying in the evening yesterday? All right. Answer question and give answer.
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स. ओके, व्हाई वाज द टीचर स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स pupils. स्टूडेंट्स को हम pupils भी बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है कि टीचर क्यों डांट रही थी बच्चों को. व्हाट वाज द रीजन. बिकॉज स्टूडेंट्स pupils वर नॉट लिसनिंग टू द टीचर. क्योंकि वो बच्चे टीचर की बात नहीं सुन रहे थे. राइट, दे वर नॉट अबेइंग द टीचर. वो उनका कहना नहीं मान रहे. बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे थे. सो दैट्स व्हाई टीचर वाज स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स. इसलिए टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं. राइट. सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप सिचुएशन समझने के बाद किस तरह से उनको सेंटेंसेस में यूज कर करके देख. जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या यूज कर सकते. राइट. इन द सेम वे, व्हाई वाज द टीचर स्कोल्डिंग पीपल्स. You can also say, why did the teacher scold pupils? Why did the teacher scold people? Now see, why did the teacher scold people? Teacher scolded people because they were making noise, because they were not listening to the teacher. Okay, so understand this way and use your own examples. Okay, and when you have such kind of questions, then uh, कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेके आइए क्वेश्चंस. राइट, उनको थोड़ा सा चेंज करके देखिए एंड देन सी द सेंस के व्हाट इज द सेंस का. राइट, एंड दिस यू कैन डू बेटर if you have someone with you. Right, you are doing this kind of practice with your friends or maybe someone from your family. And if there is no one, then you have to do both things. आपको फिर सारी चीजें खुद ही करनी. क्वेश्चन भी पूछना है, आंसर भी देना है, ट्राई भी करना है, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी ट्राई करना है. हु वॉज कॉलिंग. राइट, हु वॉज कॉलिंग. हु वॉज कॉलिंग मी इन द मॉर्निंग. हु वॉज कॉलिंग मी इन द मॉर्निंग. सो जैसे ही आप ये सेंटेंस यूज करेंगे, हु वॉज कॉलिंग मी इन द मॉर्निंग. राइट, सो जैसे ये क्वेश्चन यूज हो रहा है, सुनने वाले को आराम से समझ में आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं. Who was calling me in the morning? Right? Who was calling me in the morning? It means someone is talking about, is asking question related to past. Who was calling? If someone asks like this, who is calling? So it means वो present situation के बारे में पूछ रहा है. Who is calling? Right? So for example, your phone is ringing. Right? आपका phone बज रहा है and you are not able to receive the call. Okay? And you ask your friend, see, who is calling me? Okay, so that way that sentence is okay. Who is calling me? That question is okay. Who is calling me? Oh, your friend is calling. Okay, somehow you missed your friend's call, right? And somehow you come to know that somebody called you. So that way you are asking who was calling, right? Who was calling me? Oh, your friend was calling. You didn't talk to him. You didn't talk to her. All right. So understand this way. So this is all about कि कितना ज्यादा आप ट्राई कर रहे हैं समझने के बाद उसको यूज करने के लिए, सेंटेंसेस यूज करने. जितना ज्यादा इस तरह से यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स सोचेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि और क्या हो सकता है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं. एंड विद दैट यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. थोड़े से स्ट्रक्चर्स डिफरेंट भी यूज करके देखिए. राइट, जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट मिक्स कर रहे हैं. ओके, सो दैट वे यूज different examples, right? And with the help of those examples you will understand in a better. क्योंकि यहाँ पे स्पोकन में जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, राइट, जितने ज्यादा आप एक्सप्लोर इन द सेंस कि आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि और कैसे और कैसे और क्या, जब इस तरह का थिंकिंग होगी आपकी, सो definitely you will understand in a better way and you would be able to use different structures in a better way. Okay, so चलिए, यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूअस समझा एंड पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि किस तरह से सेंटेंसेस आ रहे हैं. ओके, एंड यहाँ पे अगेन कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ गया आया है, so you have that comment section, right? Take the help of comment section. You can ask or you can share some examples also. Okay, वहाँ पे कुछ examples share करिए that I made these sentences. Okay, so that way you can also practice that I made these sentences and then you share those examples there in the comment section. Okay, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये देखिए कि जो हमने get यूज करा है, ये हमने इस सेंस में यूज करा है. काफी सारे सेंटेंसेस गेट से यूज होते हैं. अब बिकॉज कंटिन्यूअस फॉर्म है तो इसलिए हम उसमें आईएनजी यूज कर रहे हैं एंड स्पेलिंग इज GTTING. एंड ये हमको क्या सेंस दे रहा है, होने का सेंस दे रहा है. व्हाई वॉज ही गेटिंग एंग्री यस्टरडे, कल वो गुस्सा क्यों हो रहे थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल
if you ask question like this, why are you getting late? Present related question, continuous. Okay, why are you getting late? आप late क्यों हो रहे हैं? Okay, so continuous sentences में we use get also, and get के साथ ing form use कर रहे हैं for the sense of होना. So कहीं पे भी कुछ ऐसी situation है जहाँ पे होने का sense आ रहा है इस तरह से examples में, वहां पे हम get की help ले लेंगे and we will make a sentence with the help of get, and don't forget to add ing. Okay, getting. And remember, when you make it getting, then you use double T, right? Otherwise, get की spelling is get, get. But when you make it continuous, right? So आप spelling में double T ing use कर लेंगे, right? चलिए, सो यहाँ पे हमने ये सिंपल पॉइंट समझ लिए हैं पास्ट कंटिन्यूअस से. ओके, एंड अब आपका क्या, आपके लिए टास्क क्या है कि आपका समझने का पॉइंट तो हो गया, राइट? समझने में कुछ भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, राइट? कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. अब जो मेन टास्क है वो ये कि आप एग्जाम्पल्स यूज करिए, राइट? इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स. ओके, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स सोचिए, अपने खुद के एग्जाम्पल्स सोचिए. यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल्स इसलिए होते हैं ताकि हमको सेंटेंसेस समझ में आ जाए कि किस तरह का सेंस निकल रहा है, किस तरह से सेंटेंस यूज हो रहा है. बट द रियल टास्क, रियल चैलेंजेस कि आप अपने खुद अपने एग्जाम्पल्स सोचेंगे, ट्राई करेंगे, एंड ट्राई करने के बाद देखिए कि कितने कंफर्टेबल हैं आप, राइट? आपको कितना समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, क्या सेंस निकल रहा है उसका. ओके, so this is something you have to do. Okay, and you have to do such kind of task with all the different situations. जितनी भी different situations हैं जो हमने डिस्कस की हैं अभी तक, सारी situations के साथ आपको अपने अपने आइडियाज एक्सप्लोर करने, अपने थॉट्स एक्सप्लोर करने, राइट? जो भी आपके थॉट्स हैं, आप पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, राइट? यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. ओके, अपने सेंटेंसेस में यूज करिए उनको. यूज करके देखेंगे, विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ओके, क्योंकि कभी कभी सुनने में और जब हम करके देखते हैं, ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट? कि हम सुन रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम खुद ट्राई कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ऐसे यूज कर सकते हैं, इज दिस सेंटेंस ओके according to this situation. You will understand all those things when you give it a try. So that's why it's important to keep on trying. All right. जितने भी हमने पिक्चर्स लास्ट क्लास में देखे थे, राइट? लास्ट क्लास में हमने जो पिक्चर्स देखे थे, आप फिर से जाएंगे वीडियो पे एंड उन पिक्चर्स को फिर से देखेंगे. एंड उन पिक्चर्स में हमने क्या किया था? हमने किया था कि इमेजिन करिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिचुएशन है, एंड हम एक्शंस हो रहे हैं वहां पे, एंड आप सेंटेंसेस यूज करिए. ओके, सेम पिक्चर्स के साथ अब आप इमेजिन करेंगे कि एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा था, राइट? एक्शन was happening in past and you want to use past continuous to talk about, okay, those particular situations. Okay, so एक बार वो ट्राई करके देख लेंगे तो कुछ sentences वहां से आ जाएंगे, right? So for example, teacher was standing in the class, teacher was talking to Rahul. जैसे हमने पिक्चर में देखा था, हमने बोला टीचर इज टॉकिंग टू राहुल. अब हम बिकॉज इमेजिन कर रहे हैं कि समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट. ओके, फॉर एग्जांपल कल ऐसा हो रहा था क्लास में that teacher was talking to Rahul, and Rahul was talking to teacher. He was discussing about his project. Okay, this way, make some sentences, use some sentences, and then see what kind of sentences are coming. Okay, so ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे to see that whether you understand. जब भी आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, और मैं ये सेंटेंसेस क्यों यूज कर रही हूँ. बिकॉज दैट वे क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोच तो कुछ और रहे हैं, हमारा सेंटेंस कुछ और आ रहा है, राइट? हम सोच रहे हैं दैट वो मार्केट गया था, ये हमने सोचा, एंड हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा था. ओके, सो ऐसा भी कंफ्यूजन होता है. ओके, सो देन पे अटेंशन, अंडरस्टैंड दैट जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, you know the actual meaning, the actual situation of that sentence, and you know that this is the reason I want to use this structure, I want to use this sentence. Okay, चलिए.
अब जल्दी से हाँ, आप लोग ये ट्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। ओके, अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑल दी सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट? लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट भी है। ट्राई करके देखें कैसे हम ये कम सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सेंस क्या निकल रहा है सेंटेंसेस का? ओके, सेंटेंसेस का सेंस क्या निकल रहा है? माई फादर वॉज कुकिंग लंच व्हेन आई गॉट होम। गॉट इट मीन्स व्हेन आई रीच्ड होम। सो गेट का एक और मीनिंग होता है पहुंचना, राइट? गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, गेट का मीनिंग पहुंचना भी होता है। सो यहाँ पे पहुंचने के सेंस में हमने उसका सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, गॉट। सो आप इसकी जगह रीच भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो रीच भी यूज कर सकते हैं। सो रीच यूज करेंगे तो बिकॉज सेकंड फॉर्म यूज करना है तो हम रीच्ड बोल देंगे। So my father was cooking lunch when I reached home. So my father was doing some action. And जब उसमें क्या हुआ? जब मैं घर पहुंचा. So this is the sense coming. My father was cooking lunch when I reached home, when I got home. Okay, so got का भी ध्यान में रखेंगे कि got हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, पहुंचने के सेंस में। Okay, in the same way you will complete all these sentences. Okay, so यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे। एंड उसके बाद क्या पार्ट आ रहा है उस पे ध्यान देंगे। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने एग्जाम्पल्स करे थे, ये हम ये पार्ट समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं और वहां पे व्हेन यूज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म्स यूज करते हैं, राइट? सो सेकंड फॉर्म्स का ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आप क्या यूज करेंगे? आप यहाँ पे, आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं। दोनों ऑप्शंस में से आप सेंटेंस पढ़ के देखेंगे कि विच ऑप्शन साउंड्स बेटर, विच ऑप्शन इज मोर मीनिंगफुल व्हेन यू कंप्लीट द सेंटेंस। सो अगर हम बोल रहे हैं जिम वॉज ब्रेकिंग हिज लेग या जिम ब्रोक हिज लेग, विच वन इज बेटर? जिम वॉज ब्रेकिंग और जिम ब्रोक। सो आपको ये चूज करना है कि विच साउंड्स बेटर, विच मेक्स मोर सेंस, सेंस किस में ज्यादा निकल के आ रहा है, राइट? सो ऐसे ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड ये एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखें। ओके, मैं भी आप लोग को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आई ऑलवेज थिंक के पहले खुद से ट्राई करके देखें। खुद से ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा फोकस रहता है कि कैसे क्या सेंस निकल रहा है, क्या स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, राइट? सो दैट वे यू पे अटेंशन and then we will discuss this in the next class. Okay, we will discuss this exercise in the next class. So in all these sentences you have two options, right? Given in bold, आपको ये देखना है कि वहाँ पे which one is better, which one is more meaningful. Okay, and that way you will complete all these sentences. Okay, so थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज है, ये कर लेंगे एक्सरसाइज। ओके, सो आज आप लोगों ने क्या किया है, क्या समझा है? आज आप लोगों ने, आज आप लोगों ने एक सिंपल सा सिचुएशन समझी है जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। इन सिचुएशन में कुछ सेंटेंसेस ऐड कर रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट यूज करके, व्हेन यूज करके, व्हाइल यूज करके। तो उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है हमको कि हम वो कैसे यूज करेंगे, क्या सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट, जो हमने पिक्चर्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किए थे एक्सरसाइज के लिए, सेंटेंसेस बोलने के लिए, यूज करने के लिए, सेम पिक्चर्स आप वही पिक्चर्स एक बार फिर से यूज करेंगे। एंड देयर यू विल थिंक रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस सिचुएशन। एंड देखिए वहां पे क्या व्हेन व्हाइल यूज कर सकते हैं, यूज करके देखिए, राइट? एक्सप्लोर करिए कि क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन सी द सेंस कि व्हाट इज द सेंस कमिंग when you are making those sentences, when you are talking like that. Okay, that way you have to do. And then I just shared one easy exercise, ये exercise try करके देखेंगे, and in next class we'll do this exercise, and of course we will do some other exercises also to understand in a better way how to use past continuous sentences. Okay, all right, चलिए अब
ये आप आज की क्लास में हमने जो किया है ये आप कर लेंगे अच्छे से। एंड जितनी भी क्लासेस में हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं वो भी बहुत अच्छे से, राइट। बहुत आपको हर टॉपिक में कंफर्टेबल होना है। कंफर्टेबल इट मीन्स दैट यू नो एवरीथिंग, राइट, एंड यू नो हाउ टू यूज हाउ टू यूज दैट वेरी वेल, ओके, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन, विदाउट एनी कंफ्यूजन की बात यह है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रखेंगे, सो आप देखेंगे कि कंफ्यूजन धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, राइट। यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, टू थिंक इजीली, कंफर्टेबली। एंड अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि आप नए स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बस लिमिटेड स्ट्रक्चर्स हैं, सो ऐड ऑन होते जा रहे हैं। सो अगर हम पहले के टॉपिक्स जो हैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उसमें कंफ्यूजन रहेगा, ओके। एंड कंफ्यूजन रहेगा तो फिर थोड़ा सा डिजेक्टेड फील होता है, राइट, कि क्यों नहीं आ रहा समझ में, क्यों नहीं हो रहा, राइट। सो सिंपल सा रीजन यही है कि प्रैक्टिस करनी है, कोशिश अपने तरफ से करनी है। एंड अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फिर पूछना है। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर पूछना है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। यूज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स यूज करिए एंड देन आस्क कि इस एग्जाम्पल में आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस, आई मेड दिस सेंटेंस, नाउ व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट, आई थिंक दिस इज द सेंस कमिंग आउट। सो डू ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, फ्रेंड्स के साथ, अकेले, डू ऑल दीज थिंग्स, ओके। एंड एज यू नो दैट अदर क्लासेस भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन क्लासेस कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पता है कि हाँ, माय फ्रेंड इज इन 11th क्लास और 12th क्लास, ही स्टडीज और शी स्टडीज बायो, केमिस्ट्री, राइट, मैथ्स, तो उनको बता दीजिए, राइट, इन क्लासेस के बारे में, राइट। तो वो आइडियाज ले लेंगे, नॉलेज ले लेंगे, हेल्पफुल होगा उनके लिए। सो डू लाइक दिस, okay. And of course you can also tell about these classes, level 1 classes, level 2 classes, to your other friends also. Tell them, right, ask them to come to join and to study and to practice together, right. So ऐसे करिए, okay. And ऐसे करिए and most importantly प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड ऑफ कोर्स अभी आप लोग अगर आप लोग एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी करते रहिए, राइट, उस पर भी ध्यान दीजिए एंड इस पे भी ध्यान दीजिए, राइट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, टिल देन, बाय बाय, टेक